Now the entry is related to bank. Suppose cash withdrawn from bank of rupees 15,000. यहाँ पे हमने बेटा withdrawn किया कैश कहाँ से? बैंक से. There are two things. कौन कौन सी दो चीजें? Cash or bank? Cash and bank, right? Cash is asset. Asset. So related to which account? Real account. Real account, yes. And what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Okay, so it will be debit or credit? Credit. Credit, right? Why? When you withdraw some amount from the bank, debit होगा. Yes. Money तो आ रहा है. Yes. So it will be debit. What about bank? Is it asset, expense, income, or person? Personal account में. Yes. Which person? Types of person. Which type of person? Today I told you three type of person. One is natural person, another is artificial, and third one is personal representative. Bank तो artificial person होगा. Yes. So this is related to personal account. Now what is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Yes, debit the receiver or credit the giver. So it should be debit or credit? Credit. Because वो पैसा दे रहे. Yes, bank is a giver, right? So entry will be cash account debit to bank account, right? To bank account. Next. Cash. मैं तो लिख रही हूँ. हाँ, मैं आपको लिखवाऊंगा, proper लिखवाऊंगा. Once it is completed, then I'll give you the time, right? So cash deposit into bank. दो चीजें कौन-कौन सी होगी? Cash or bank? Yes, again cash and bank. So tell me, cash is asset. यहाँ पे पैसा जा रहा है. Yes. इसलिए कैश क्रेडिट होगा शायद. Yes. It will be credit because पैसे जा रहे हैं. Debit, credit word goes out, right? And what about bank? Bank is a receiver or वो giver? तो पैसा ले रहे हैं, वो डेबिट होगा. Yes, so it will be debit. So entry will be bank account debit to cash account, right? एक मिनट सर, वो तो एक मिनट. वो another transaction related to bank is rent paid by check of rupees 12,000. Tell me beta, two things. One is rent or bank. Yes, rent is an asset, income, expense. Nominal account. Yes, it is an expense. That is why it becomes nominal. It comes under the nominal account, right? So tell me the rule of nominal account. Debit. Expense and losses are debited. Yes. Incomes and gains are credited. Yes, so it will be debit. What about the bank? Bank is an artificial person of a personal account. So debit the receiver, credit the giver. Yes, debit the receiver, credit the giver. So it will be credit. Yes. Credit. It will be rent account debit to. Entry will be rent account debit to bank account. Bank account. Right. Next entry is also related to bank, that is electricity bill of rupees 8,000 by check. Payment is made by check. So tell me the two things. एक मिनट. Electricity or bank? Yes. So इसे आप करो. So electricity is an expense, nominal account, debit, and bank is an artificial person, personal account, giver, then it should be credit. So entry will be electricity account debit to bank. The another entry that is related to bank is this one. Load of rupees 50,000 taken from bank. Very important. थोड़ा ध्यान से देखना और बताना मेरे को.
What are the two things? Bank and bank loan. Yes. So bank is an artificial person that personal account, and personal account, rule of personal account is debit the receiver and credit Debit the receiver, credit the giver. forget. What happens? Why you forget the rules? नहीं सर मैंने सुना ही नहीं है. Next time whenever I'm asking, say immediately, right? क्योंकि सोचने लग जाओगे, that means आप कहीं ना कहीं रह रहा है, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन नहीं है. You have to reply immediately that the personal account rule is debit the receiver, credit the giver. So it will be receiver. How? Chalo, I'm giving you an example. With the help of example, you can understand why it is receiver, right? Suppose beta, you are doing a business or you have a bank account. Do you have a bank account or not? अभी तक चालू नहीं हुआ है. ठीक है. Which bank? तो चालू करना है. Yes, in which bank? पता नहीं मुझे. Suppose you are doing a business and you have a bank account in HDFC, right? And you are taking loan from which bank? That is Axis Bank. ठीक है, दोनों का नाम सुना हुआ है, right? Axis Bank is giving loan to you of rupees 50,000, right? So here your bank, that is HDFC, is a receiver or not? Yes or no? So that is why bank is become receiver. And Axis Bank is giving loan to HDFC. So that 50,000 is bank loan. And bank loan is a personal representative who is representative to Axis Bank. And Axis Bank artificial person, we already know. So Axis Bank is giving loan to the HDFC to you. That means personal account and he is a giver. Axis Bank is a giver, right? So it will become credit. Are you getting my point? बैंक और बैंक लोन ये समझ में नहीं आ रही है क्योंकि दो टर्म. One is bank, another is bank loan. Bank is an artificial person, but bank loan is a personal representative because it is not a person, but it represents to some another person. बैंक लोन कहां से मिलेगा? किसी बैंक से तो मिलेगा. सो जिस बैंक से मिल रहा है, दैट बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट ना, वो तो पर्सन है, बट उस पर्सन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 50,000 का बैंक लोन. तो ये क्या हो गया? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. क्लियर? कोई दिक्कत? इजी? चलो, मैं चाहता तो आपको इसे रटवा भी सकता था जैसे और जगह रटवाते हैं. सिंपल, वो बोलते हैं बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी विल बी क्रेडिट, एंड बैंक इज एन एसेट, तो इट विल बी डेबिट. वो इसको डेबिट कर देते, इसे क्रेडिट कर देते, आप भी खुश, आपको भी समझ में तुरंत आ जाता. बट आप माइंड नहीं लगाते. आप माइंड ही नहीं लगाते. जो बोला होता है उसे रट लेते, क्राइमिंग कर लेते. लेकिन मैंने आपको समझाया व्हाई इट इज डेबिट और व्हाई इट इज क्रेडिट. करो इसे. Suppose if you are taking loan from the bank, the bank will give you that loan free of cost, or they will charge some amount. Obviously they will charge some interest from you in the form of interest. तो मैंने कहा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन 10%. जो 50,000 का लोन लिया था उस पर 10% का इंटरेस्ट पे किया. yes or no? So how much interest? Tell me the amount. The 10% of 50,000, that is 5,000. So दो चीजें कौन सी आएगी बेटा यहाँ पे? इंटरेस्ट और बैंक. इंटरेस्ट और बैंक.
Yes. One is interest on loan, another is bank. Interest on loan is an asset, expense, income, or something else. Tell me. इंटरेस्ट ऑन लोन, पता नहीं सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा आप बैंक से लोन ले रहे हो और उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो ये एक्सपेंस होगा आपके लिए या नहीं होगा? हाँ। एक्सपेंस है रिलेटेड टू विच अकाउंट? नॉमिनल। Nominal, yes. Tell me the rule of nominal. Debit the expense and losses, credit the income and gain. So it will be debit or credit? डेबिट होगा। Yes. What about bank? बैंक को बैंक इंटरेस्ट तो मिल रहा है तो बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज बैंक इज रिसीविंग द इंटरेस्ट, तो रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? हाँ, रिसीवर। गलत। मैं इसीलिए मैंने आपसे जानबूझ के इस तरीके से पूछा। ध्यान से सुनो। दिस इज योर बैंक, HDFC बैंक था आपका, एंड दिस इज एक्सिस बैंक जो आपको लोन दे रहा था। एक्सिस बैंक से लोन लिया है तो एक्सिस बैंक को उस पे इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे? तो आपका बैंक तो HDFC था ना, बिजनेस का। तो बिजनेस का जो बैंक है वो लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये गिवर हो गया ना? ये सुनो, तो ये गिवर नहीं होगा यहाँ पे ये बैंक। कैसे? जैसे ये वाला बैंक HDFC तो आपका ही तो बैंक है, तो HDFC जब गिवर हो रहा है तो ये गिवर नहीं हो रहा। Okay, sir, why can't I take loan from HDFC directly? Why I need to take from बेटा Axis? अगर इफ आई टुक द एग्जांपल ऑफ सेम बैंक तो you will confuse definitely. That is why I took the different banks. अगर मैं HDFC लेता तो आपको फिर बार बार पता चलता कि HDFC, फिर दूसरा भी एग्जांपल HDFC सामने रखता तो गड़बड़ हो जाती। पर ध्यान रहे, जब हम HDFC से भी अगर लोन लेते हैं ना, तो हमारे लिए हमारा एक लोन अकाउंट नंबर अलग से ओपन होता है बैंक में, फिर हमारे पास 2 अकाउंट हो जाते हैं विद द सेम बैंक। तो अगर मैं बार बार HDFC को डेबिट, HDFC को क्रेडिट करता, उस केस में आप कंफ्यूज हो जाते। दैट इज व्हाई आई टुक द अनदर बैंक इन माय एग्जांपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So entry will be interest on loan account debit to bank. This is next entry is related to bank. Obviously अगर आपने लोन लिया है बैंक से तो बैंक को उस लोन की रीपेमेंट भी करोगे, यस और नो? तो अगर आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हो तो आप मेरे को बताओ 2 चीजें कौन सी होगी यहाँ पे? कैश और बैंक। वाई कैश? एक जब आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हो तो एक तो लोन आएगा बैंक लोन और एक बैंक, क्योंकि बैंक लोन आपका कम हो जाएगा ना। अब बैंक लोन लुटा रहे हो आप उस पर्सन को। तो जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया था, दैट इज सपोज आपका HDFC है और आपने एक्सिस बैंक से लोन लिया है, तो HDFC ने वो लोन की रीपेमेंट कर दी एक्सिस को। हेयर योर बैंक बिकम गिवर, तो बैंक आपका क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा इस केस में। और एक्सिस बैंक, ये बैंक लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एक्सिस बैंक को। तो ये एक्सिस बैंक रिसीवर हो जाएगा ना इस टाइम पे, यस और नो? दैट विल बिकम डेबिट। यस और नो? तो एंट्री विल बी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैंने लोन लिया था तो एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और अगर आप कहीं और स्कूल में पढ़ रहे होते, कहीं और पढ़ रहे होते, तो वो आपको बताते कि रीपेमेंट के टाइम पे एंट्रीज उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है।
वहां बैंक टू बैंक लोन था, यहाँ बैंक लोन टू बैंक हो गया है। बात तो सही है, बट रीजन देखो किस वजह से उल्टी हुई है। रीजन मैंने आपको स्क्रीन पे बताया। Why bank loan is debited? Because Axis loan is receiving that Axis Bank is receiving that amount. That is why bank loan become debit. And most of the students don't know that the bank loan is a personal representative related to personal account. तो ये चीज आपको सर समझ, ये वाला तो समझ में नहीं आ रहा है सर। यही चीज आपको समझनी और अंडरस्टैंडिंग बनानी है अपनी। Now moving further, next entry is also related to bank, that is payment of rupees 2500 to creditor by check. अब हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी चेक के थ्रू। क्रेडिटर कौन हुआ? जिससे कभी हमने सामान उधार में खरीदा होगा, ठीक है। अब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो दो चीजें कौन सी होगी यहाँ पे? टेल मी। क्रेडिटर और बैंक। यस, अब आगे बताओ। बैंक is an artificial person related to personal account. What is the rule of personal account? जल्दी फटाक से। Debit the receiver, credit the giver. So it will be debit or credit? Here bank is receiver or giver? Payment of 2,500 to creditor. Giver. Giver, yes. So giver to credit, right? What about creditor? He's receiving the money. Natural person related to personal account, so receiving the money. Personal account, he will be debited. Entry will be creditor account debit to bank. Yes. एक और अभी लिखो मत, पहले इसका बताऊं। चलो पहले आप लिख लो, उसके बाद इस पे आएंगे। तीन चीजें लेंगे। पहली चीज क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट हो रही है। दूसरी चीज बैंक चार्जेस, क्योंकि हमें जो बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ रहा है उसमें बैंक चार्जेस भी पे करने हो रहे हैं। और तीसरी चीज बैंक, राइट। अब क्रेडिटर, बैंक चार्जेस एंड बैंक। क्रेडिटर तो आपको पता है, पर्सनल, नेचुरल पर्सन तो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर रिसीवर हो गया, सो इट विल बी डेबिटेड। अब अगर आप रट्टे मारते कि ये चीज, एक चीज डेबिट होगी और दूसरी चीज क्रेडिट होगी, तो आपकी वो रट्टाफिकेशन गड़बड़ हो जाती। ये अगर डेबिट है तो इसको क्रेडिट करें या इसको क्रेडिट करें, गड़बड़ हो जाता ना। तो उस केस में अब आपको समझना है, अगर आपको पेमेंट करनी थी कितने की, 1500 की, लेकिन आपके एक्सपेंस हो रहा है 100 रुपीज एक्स्ट्रा, और तो ये 100 रुपीज आपका एक्सपेंस हुआ रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। Nominal account. तो इट विल बी डेबिट, Debit. लॉस है डेबिट। और आपके पास से, आपके बैंक से कितने पैसे जाएंगे टोटल? 1,600. यस, सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक के पास से जो पैसे जा रहे हैं, बैंक गिवर है, तो क्रेडिट हो जाएगा 1600 रुपीज से। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? एनी डाउट? नो, अभी मैं लिखूंगा सर, एक मिनट। बिल्कुल लिखो। यस बेटा। इन्वेस्टमेंट, today I'm talking about you with investment. Have you heard about investment? हाँ A सर। word that is called investment, right? अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की बेटा, घर पे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप पापा से बोलोगे तो पापा का इन्वेस्ट करेंगे, पापा बोलेंगे मैं लैंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, किसी फ्लैट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, है ना। मम्मा से पूछोगे कि मम्मा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो बताओ मम्मा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी? गोल्ड। हाँ, एग्जैक्टली। बट अब आपसे कोई पूछे मम्मा पापा कि आपके पास एक्सेस अमाउंट है, वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आप
ना तो लैंड में करोगे ना गोल्ड पे करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? Here, see here, see here, reply. ये क्या हो गया? मैं क्या कैमरा वैमरा चेंज हो जा रहा है बार बार, कभी इधर कभी इधर। हाँ अब ठीक है। अरे फिर वापस। हाँ यस, वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट? I don't know where I can invest. यू सेड सर स्टॉक में? मैं स्टॉक में लाइक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकती हूँ कुछ अमाउंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हूँ लाइक शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर लेती हूँ, राइट? अब अगर आप या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देती हूँ, बॉन्ड्स 007 जेम्स बॉन्ड वाला नहीं, ठीक है? ये जिस तरीके का एक डॉक्यूमेंट होता है जैसे डिबेंचर होता है, लाइक दिस बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है जनरली, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड्स निकाले थे जिसपे गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है आप लोगों को, राइट? अब बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन व्हेन यू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन शेयर्स, तो शेयर्स में आपको क्या मिलेगा बेटा? डिविडेंड मिलता है, राइट? फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, म्यूचुअल फंड में भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है और डिविडेंड भी मिलता है। क्लियर? तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि जो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पे आपको रिटर्न क्या आता है? इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो समझ में आई? तो अब जो मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको करवा रहा हूं, दैट ट्रांजेक्शन इज डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने बैंक को बोला हुआ है कि बैंक मेरे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट कर लेना, तो बैंक डिविडेंड कलेक्ट कर रही है, यस और नो? तो कितने की डिविडेंड कलेक्ट करी? 2000 रुपीज की। तो दो चीजें कौन कौन सी होगी यहाँ पे? व्हाट हैपेंस? नहीं? Yes. Two things is dividend and bank. And dividend, bank is an artificial person related to personal account, so it will be debit or credit, receiver or giver. If your bank is receiving dividend on behalf of you, so bank is the receiver or giver? Receiver. Yes, receiver. And what about dividend? Dividend is an expense, income, assets or something else. पता नहीं सर। I told you just 3 to 4 minutes ago. If we invest some amount in shares, so we receive dividend on that. So dividend is our income or expense? Income. Obviously, if bank is receiving dividend, that dividend is our income. Income to related. Incomes and gains are credited. Yes, so it entry will be bank account debit to dividend. Clear? Just note down. Next transaction is payment of rupees 1500 for life insurance by bank draft and bank charges of rupees 100. अब सुनो मेरी बात, सबसे पहली चीज, जो लाइफ इंश्योरेंस आप पे कर रहे, मतलब कौन पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है। बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस किसका? क्या बिजनेस की कोई लाइफ होती है? नहीं। बिजनेस कोई लिविंग थिंग थोड़ी ना है कि उसकी लाइफ का इंश्योरेंस कराया जाए। बिजनेस के ओनर के इंश्योरेंस हो रहा है ये तो। और बिजनेस का ओनर कौन है? सोल प्रोप्राइटर की अगर हम बात करते हो तो सिंगल पर्सन। सपोज आप अपना बिजनेस कर रहे हो और आप अपना इंश्योरेंस लेते हो और उसकी पेमेंट बिजनेस के अकाउंट से पे कर रहे हो, तो अगर आप अपना खुद का इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस, तो इट विल बिकम ड्रॉइंग ना बेटा। आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए, ओनर के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए थोड़ी ना यूज हो रहा वो। तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो होगा ड्रॉइंग आपके लिए, राइट? तो एक पहली चीज क्या आ जाएगी? पहली चीज हो जाएगी आपकी ड्रॉइंग। ड्राइंग। दूसरी चीज आपने ड्राइंग मतलब
ड्राइंग मतलब whenever you withdraw some amount, some goods or some सर हाँ amount. वो तो विड्रॉ करने में होगा ना सर, अभी तो पे कर रहे हैं ना सर। हाँ, पे कहाँ से कर रहे हो? बिजनेस के अकाउंट से पे कर रहे हो ना, तो बिजनेस से जब विड्रॉ किया तभी तो पे किया। ठीक है सर, समझ में हो गया। समझ में आ गया? एग्जांपल दूं, आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। अच्छा दे दो। ठीक है, सपोज बेटा यू हैव अ गारमेंट्स बिजनेस, मैंने कहा ना आपको एक ब्यूटीक है, सपोज एग्जांपल के लिए, राइट? अब आपको किसी ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी का फोन आया कि आप अपने लिए एक इंश्योरेंस ले लो। आपने बोला ठीक है, उन्होंने अमाउंट बताई 1500 रुपीज प्लस 100 रुपीज बैंक चार्जेस। तो आपने बोला अच्छा, मैं अगर 1500 रुपीज बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट करूंगी तो उसमें 100 रुपीज एक्स्ट्रा लग जाएगा। उन्होंने बोला हाँ। अब आप उस दिन अपना डेबिट कार्ड लेके जाना भूल गए थे, तो आपके पास बिजनेस का कार्ड पड़ा था, आपने बिजनेस का कार्ड यूज कर लिया, तो पेमेंट कहां से हुई? बिजनेस से हुई, लेकिन पेमेंट आपके पर्सनल पर्पस के लिए हो रही है ना बेटा, तो इट विल बिकम ड्राइंग और नॉट, राइट? सेकंड भाई थिंग समझ में आपने आ गया। बोला, सेकंड थिंग आपने बोला सर बैंक चार्जेस और बैंक होगा। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो तो चाहे जितने भी अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, बैंक चार्जेस वगैरह, ये सारी की सारी आपकी ड्राइंग है ना, ये बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी ना है, तो बैंक चार्जेस नहीं आएगा, सिर्फ ड्राइंग और बैंक होगा। बैंक चार्जेस तब हम लेते, तब कंसीडर करते व्हेन दिस अमाउंट इज पेड फॉर बिजनेस पर्पस, बट बिजनेस के पर्पस के लिए थोड़ी ना लाइफ इंश्योरेंस पे किया जा रहा है, आपके खुद के लिए पे किया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग क्या है? ड्राइंग हमारा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। देखो एक और अनदर एग्जांपल ऑफ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज ड्राइंग। सबसे पहले एग्जांपल दिया था कैपिटल, देन बैंक लोन, एंड अनदर एग्जांपल इज ड्राइंग, राइट? क्लियर? तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है तो रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, राइट? सो बताओ, इट विल बी डेबिट और क्रेडिट? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। ओनर जब विड्रॉ कर रहा है, ओनर जब अमाउंट निकाल रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो इट विल बी डेबिट, रिसीवर हो गया ओनर। और बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इट विल बी क्रेडिट, क्योंकि बैंक के थ्रू तो पेमेंट। ये कैसे रिसीव हो रहे सर? बेटा आपने कार्ड जो यूज किया वो किसका यूज किया? बिजनेस का यूज किया। बिजनेस का। अगर आप बिजनेस का कार्ड यूज कर रहे हो बेटा, तो आप मेरे को बताओ, आपने बिजनेस से पहले आपको क्या कर रहा है वो? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप बिजनेस से पैसे ले रहे हो तो आप रिसीवर नहीं हुए, तो इट विल बिकम डेबिट। क्या हो गया? कैमरा बार बार छेड़ रहे हो? सर ये टेबल मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गई सर। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई ड्राइंग इज डेबिटेड? So entry will be drawing account debit to bank by 1600 rupees. एक मिनट, वो